Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Greet you all in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Mercury is really soaring and it's really intense heat. But regardless of all the odds, the Lord is so good, so merciful, so kind, and it is such a great joy to serve the King of Glory. And it's an honor and privilege to live in these exciting times upon the earth. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो. हालेलुया. प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. Hallelujah. Bring you. Hallelujah. We bring you sacrifice of praise, Lord. In your house and the house of the Lord, we bring the sacrifice of praise. Hallelujah. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. Hallelujah. This is such a marvelous thing. I just talked about with you since I've been just inside, didn't go outside, just peeped outside of the window. It just started raining. Hallelujah. The Lord is so good, so kind. He's giving us a very favorable weather and we give glory to the Lord. यीशु मसीह की महिमा करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाता है. ये सब मिलके प्रार्थना करें. आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ लिफ्ट अप योर वॉइस एंड लेट अस वर्शिप हिम. लेट अस अडोर हिम, द किंग ऑफ ग्लोरी, द हाईली एक्सॉल्टेड वन. हालेलुया. Let us worship him, the Lion of the tribe of Judah, the Alephantab. Hallelujah, the creator of heavens and the earth, the beginning and the end, the way, the truth, and the life, the bread that descended from heaven, the light of the world, the fountain of living water, the real elixir of life, the true nectar that will sustain us forever. Let us adore him. He is Amen, and he is trustworthy. He will never deny us. He will always remain faithful, even though we be unfaithful unto him. Hallelujah. Let us exalt him. Let us exalt him. People of all ages, people of all civilizations, people of all culture, people of all tongues and tribes and nations, people from all generic pools, stand before his majestic throne, arrayed in white, and they lift up their voices and they sing unto the Lamb. When John the Revelator saw, in an instant he realized. He writes, he says, I saw a great multitude whom no one can count. Truly it will be an innumerable company of the redeemed that shall worship, serve, and adore the King of Glory throughout the ages without time reckoning. And John the Revelator, in an instant, he recognized them and he wrote they were redeemed from different nations, different tribes, different tongues, different cultures, in different times. People of all ages, people of all cultures, people of all civilizations, people of all generic pools, people of all races, they all will be there worshipping the Lamb. And we all will be worshipping the Lamb. That is the objective. That is the essence of humanity. That's why God created us. So that we will bring praise and honor
to the greatest I am. Hallelujah. Hallelujah. आपको मालूम यहोवा परमेश्वर ने मूसा को भेजा फिरौन के आगे और उसे एक मैसेज दिया, लेट माई पीपल गो, लेट माई पीपल गो सो दैट दे माइट serve me. They might serve me. The real root word also alludes that they might worship me. Why God liberated the multitude from the land of bondage, the seed of Abraham? The sole objective was that they may worship Yahweh. Hallelujah. आराधना के लिए यहोवा ने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया. और पढ़िए, पूरा टोरा पढ़िए, पेंटाट्यूक, मूसा की पहली 5 पुस्तकें. That is the only thing they failed to do. They could never worship as one Kohelim, ecclesia, as one body of the redeemed. Hallelujah. हम आराधना करें, आराधना की ओर ध्यान लगाएं, यीशु मसीह की परस्तिश, यीशु मसीह की स्तुति, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह का धन्यवाद करना, इस ओर फोकस करें. बहुत बार हमारे लिए हम अपनी मिनिस्ट्री की पूजा करते हैं. बहुत सारे लोग, दे वर्शिप देयर मिनिस्ट्री. दे आर नॉट वर्शिपिंग द लैम सीटेड ऑन द थ्रोन हु वाज स्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, बट दे आर वर्शिपिंग देयर मिनिस्ट्री. दे आर वर्शिपिंग द असाइनमेंट दैट दे आर डूइंग. तो इस ट्रैप से हम बचें, हम यीशु मसीह की आराधना में संलग्न हो जाएं. हालेलुया. अपने दिल में टाइम चोरी करें, स्टील करें, अलग अलग स्पेल रखें समय की, जस्ट टू बी विद द लॉर्ड एंड जस्ट टू अडोर हिम एंड जस्ट टू वर्शिप हिम. शॉर्ट स्पेल निकालें, जाके आइसोलेशन में जस्ट बिगिन टू वर्शिप हिम एंड अडोर हिम एंड प्रेज हिम. कभी 20 मिनट्स निकालें जस्ट टू गिव हिम थैंक्स. तेरा धन्यवाद हो. और यीशु मसीह के आगे मांग पत्र ना रख दें लंबा सा, थोड़ी सी आराधना करके. ही विल टेक केयर ऑफ यू. शेर के बच्चे भूखे सो जाएंगे. सबसे जोरावर प्रेडेटर इस पृथ्वी पे है शेर, जो अपने बच्चों के लिए शिकार लाएगा ही लाएगा. बट ही विल फेल. याह विल नेवर फेल. हालेलुया. हालेलुया. मोती परस्तिश के चुनकर तेरी नजर में करूं. गाइए. मोती परस्तिश के चुनकर तेरी नजर में करूं. बाहों में ले ले खुदावन, बाहों में ले ले खुदावन. यही तमन्ना करूं. भर मुझे मेरे यस्सू रूह की मामूरी से. भर मुझे मेरे यस्सू रूह की मामूरी से. छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू मुझे छू यीशु, मुझे छू छू मुझे छू. गाइए. खुदा रू मुझे छू 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 मुझे छू. खुदा रू मुझे छू. सोचों को छू, होठों को छू,
ख्यालों को छू है यीशु, होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू है यीशु, छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू छू मुझे, छू प्यारे यीशु, छू मुझे, छू खुदारू मुझे, छू. Hallelujah. Lord, we draw nigh unto you. Lord, I am your creation, and I am the purchase of your blood. My sins, my iniquity, my unrighteousness was atoned with a very heavy price. And it's not corruptible things such as silver and gold, but it was the precious blood of Yahushua HaMashiach. So, Father, I plead that blood over everyone that is under the voice of your servant right now. May hearts be humbled. May hearts become receptive. May your people have a teachable spirit to learn from you, Lord. To learn from your spirit the deep things that you reserve to be unfolded, that you reserve to be unraveled in these last days. Hallelujah. We give you praise, Lord. मैं प्रभु एक एक तेरे बेटे बेटी पे जो तेरे वचन को अब सुनेगा, तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ. I plead the blood of the Lamb over them, over their household. Lord, bring your priest. I bring them before the throne of grace. Before the throne of grace, where the blood of the Lamb has already been pleaded. Hallelujah. खुदावंद, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह को और तेरे रेवलेशन को, let it flow like a mighty river. Cause it to flow like a mighty river, Lord. We praise you. We give you glory. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैंने कल आपको बता रहा था कि शाऊल जो राजा था, उसकी अनॉइंटिंग और डेविड की अनॉइंटिंग दोनों में कितना फ़र्क डाला यहोवा ने. एंड इट इज़ याह हु डिड इट. यहोवा ने पहला सैमुएल 10:1 में सैमुएल को ये कहा कि कांच की बोतल में तेल लेके चला जा और शाऊल को अनॉइंट कर. और जब सैमुएल शाऊल को अनॉइंट करता है तो वहाँ पे एक साइन ऑफ इंटेरोगेशन है. और फिर परमेश्वर सैमुएल को दाऊद को अभिषेक करने के लिए कहता है. पहला सैमुएल 16:1 से पढ़िए, 16:12 तक, और फिर 16:13 पढ़िए. यहोवा परमेश्वर जिस विधि से अपने राजा को, याजक को और नबी को अनॉइंट करता था, प्रॉपर ढंग से एक रैम के हॉर्न के अंदर तेल डाला, रैम के हॉर्न के आगे सील लगाई जो मोम हनीकूम से निकलती है. और जब नबी नरसिंगे के अंदर तेल डाल के, नरसिंगे की एक साइड नेचुरली बंद होती है, नरसिंगे की दूसरी साइड को मोम से बंद किया जाता है जो हनीकूम से निकलती है. और खुदावंद का खादिम उस हॉर्न को, जिसे खुदावंद चाहता है मसा करना, उसके सर पे ऐसे ऊपर उठाता है और पवित्र आत्मा की आग आके मोम को पिघलाती है. तो पहला सैमुएल 16:13 पढ़िएगा. जैसे सैमुएल ने हॉर्न को ऊंचा किया डेविड के सर के ऊपर, वो हॉर्न आगे बंद था आगे से, वो अपने लेदर के थैले में डाल के लेके गया था. जैसे उस हॉर्न को दाऊद के सर के ऊपर, उस सिंग को दाऊद के सर के ऊपर ऊंचा करता है जिसमें अभिषेक का तेल भरा है, पवित्र आत्मा की आग आके मोम को पिघलाती है. और एक
फाउंटेन की तरह तेल दाऊद को तरबतर कर देता है अभिषेक से। हालेलुया। ये है यहोवा का मसा। शाऊल कभी भी परमेश्वर की पहली चॉइस नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक परमेश्वर की परफेक्ट विल है और एक परमेश्वर की परमिसिव विल है। आप परमेश्वर को बग करते हो किसी चीज़ के लिए। परमेश्वर आपको आपसे बात करता है, बोलता है आपके आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप नहीं सुनते हो, फिर परमेश्वर बोलता है अपने वचन से, नहीं सुनते हो। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बोलता है, आप नहीं सुनते हो। परमेश्वर नेचर के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा बोलता है, आप तो भी नहीं सुनते हो। फिर परमेश्वर आपको जो आप चाहते हो वो दे देता है। मैंने बहुत साल पहले, पुरानी बात है, जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, एक बहुत अच्छी बहन थी, प्रभु में आई और उसने प्रभु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा से भर गई। उसने एक दिन मुझे एक लड़के से मिलाया और उसको मैंने वचन बताया और कुछ समय बाद वो मेरे पास आई, बोली, ब्रदर, वो जिसको मैंने आपसे मिलवाया था लड़के को, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। हालांकि उस लड़के ने वचन सुना, वो 2-4 बार मीटिंग में भी आया और देखने में ऐसा लगता था कि वो प्रभु को ग्रहण करेगा, विश्वासी है। तो मैंने बोला, आप प्रभु के आगे उपवास रख के प्रार्थना करो। उसने 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना की और मैंने भी 1 दिन उपवास रख के प्रार्थना की, लेकिन मेरी आत्मा में इट वॉज ए बिग नो, ए बिग फैट नो। गॉड गेव मी अ बिग फैट नो। ही सेड नो, ही इज़ नॉट द वन फॉर हर। मैंने उस बहन को बोला कि ये लड़का तुम्हारे लिए नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, उसका मुंह उतर गया और वो दुखी भी हुई कि मैंने ऐसा कहा। मैंने बोला, मैंने प्रभु से ये सुना है कि वो तेरे लिए नहीं है, लेकिन वो सुन रही है कि उसी से मैंने शादी करनी है। देखिए, जब आप रोमांटिक रेल्म में चले जाते हैं, इमोशनल रेल्म में रोमांटिक हो जाते हैं, आपके इमोशन फ्लो करने लगते हैं रिवर की तरह, तब आपकी सोल जो है, जिससे सोल के अंदर जो माइंड है और आपके जो इमोशंस हैं, विल जो है, वो हावी हो जाती है पवित्र आत्मा पे। आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनती। तो उसने क्या किया, नहीं, मैं उपवास रखूँगी, प्रभु ने ऐसा किया है, फलाना है, ढिमका है, वो मीटिंग में आ रहा है, ऐसा है, उसको बपतिस्मा भी लेना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसने उपवास रखे, उसने, मुझे नहीं मालूम 21 डेज़ के रखे या 40 डेज़ के रखे, लेकिन उपवास के बाद वो फिर मेरे पास आई और बोली कि प्रभु ने मेरे को दिखा दिया आत्मा में, मैंने उससे शादी करनी। मैंने बोला, ठीक है, आपका जीवन है, अपने जीवन के लिए आपने निर्णय लेना है, मेरा काम था आपको बताना। तो उसने सोचा कि मैंने उपवास रखे हैं तो प्रभु मुझे भी कोई नई बात कहेगा। मैंने बोला, मुझे प्रभु ने वही बात कही जो पहले कही थी। खैर, उस लड़की ने शादी कर ली और मुझे उस शादी का हिस्सा नहीं बनाया, बुलाया भी नहीं। शादी होगी उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बढ़िया। 5-6 महीने गुजरे, 5-7 महीनों के बाद झगड़े होने शुरू हुए। उसका 1 साल के भीतर डिवोर्स हो गया। 1 साल के भीतर उसका उस लड़के से डिवोर्स हो गया। शी वॉज एब्सोल्युटली शैटर्ड, एब्सोल्युटली ब्रोकन। उसको परमेश्वर ने परमिट किया शादी करने के लिए, वो परमिसिबल है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर होंगे। When God just lets you, because you are bugging him, if you fast 40 days, you think you will twist the arm of God and you will change his mind. Absolutely no way. You cannot change the mind of God. He is immutable. His ways are irrevocable. He is not a man who will say and then change his mind. He is not a man who will lie. There is a permissive will. When you really bug God for something that he hasn't designed for you, he will let you have it, but that thing will become disaster for your life. तो शाऊल परमिसिव विल में दिया गया राजा था। मैंने आपको बताया डेविड की 2 खास बातें थी। डेविड अंडरस्टूड द नेम ऑफ याहवे।
एंड द कैरेक्टर ऑफ याहवे। दाऊद को यहोवा का नाम और यहोवा के कैरेक्टर का पता था। और फिर मैंने बताया आपको, दाऊद को इनिक्विटी का भी पता लग गया कि डीप सिन क्या होता है, गहरा पाप जो इंसान के अंदर मूव करता है, इंसान के जीनोम में रहता है, डीएनए में रहता है। वो गहरा पाप जो अंदर है, इनसाइड है, परसोना में रहता है इंसान के, वो पाप क्या है आपको मालूम? वो अंगीकार करता है, कहता है इन इनिक्विटी डिड माई मदर कंसीव मी, आवान में मेरी माँ ने मुझे कोख में लिया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के आगे एक खुली किताब है। और शाऊल एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लोगों के आगे अपने रेपुटेशन की ज़्यादा फिक्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो वर्ड हैं, एक है रेपुटेशन, दूसरा है इंटेग्रिटी। आपके रेपुटेशन को लोग अपने जूतों के नीचे मसल सकते हैं, आपके कैरेक्टर का असैसिनेशन कर सकते हैं, आपके बारे में किसी को बुरी बातें बता सकते हैं, आपका पूरा कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हैं लोग, आपके बारे में गलत बोल के, आपका गलत प्रोफाइल लोगों को बता के। और ये वो लोग होते हैं जो आपको जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं होते हैं, वो आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं और आपके कैरेक्टर को पार्ट बाय पार्ट डिसमेंटल कर देते हैं, आपकी एक बुरी इमेज बना देते हैं। वो लोग केवल आपके रेपुटेशन को रूइन कर सकते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, आपके रेपुटेशन को रूइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंटेग्रिटी आपके अंदर है, आपकी इंटेग्रिटी को कोई टच भी नहीं कर सकता। आपकी इंटेग्रिटी आपकी सेक्रेड आइडेंटिटी है जो यीशु मसीह के लहू में छिपी हुई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसलिए रेपुटेशन की परवाह मत कीजिए। आप लोग अक्सर ये कहते हैं अपने जीवन में, जी लोग क्या कहेंगे। इस फोबिया में मत जिए, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत डेंजरस क्लॉज है, बहुत डेंजरस फ्रेज है जो सोसाइटीज ने बनाई है। लोग क्या कहेंगे, ये रेपुटेशन है आपका। आप रेपुटेशन को बिल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। बाइबल में लिखा है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। यीशु मसीह ने अपने आप को बिना रेपुटेशन के बनाया। जो आपकी इंटेग्रिटी है, आप प्रभु में कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अपनी मिनिस्ट्री की भी एक रेपुटेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मिनिस्ट्री की एक बाहर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इमेज, एक्सटर्नल इमेज। प्रभु को इसकी कोई दरकार नहीं है आपकी एक्सटर्नल इमेज की। प्रभु आपकी इनर इंटेग्रिटी की परवाह करता है। शाऊल केवल बाहरी रेपुटेशन चाहता था लोगों में, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। जब वो पहाड़ पे था और उसने कुर्बानी चढ़ा दी और शमूएल की इंतज़ारी नहीं की, तो शमूएल ने आके उस पर जजमेंट प्रोनाउंस की। शमूएल ने कहा यहोवा ने तुझे त्याग दिया है। तो वो शमूएल के गारमेंट को पकड़ लेता है। शमूएल जा रहा उसको छोड़ के, वो शमूएल के गारमेंट को पकड़ता है और शमूएल से कहता है, क्योंकि पहाड़ के नीचे इस्राएली लोग खड़े हैं, तो वो शमूएल से क्या कहता है? वो शमूएल से कहता है कि परमेश्वर के दास, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, क्योंकि तू मुझे पहाड़ पे अकेला छोड़ के चला जाएगा तो लोग ये जान लेंगे, लोगों को ये पता लग जाएगा कि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। वो अपने जीवन में लोग क्या कहेंगे, लोगों के अंदर इमेज बनाना, लोगों के अंदर रेपुटेशन बनाना, लोगों में अपना नाम कमाना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, लोग मुझे अप्रूव करें, लोगों को मैं प्रसन्न करूं, ऐसा राजा था वो। उसके अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं थी। ही नेवर केयर्ड फॉर गॉड। जो लोग इंटेग्रिटी है जिनके अंदर, दे डोंट केयर फॉर देयर रेपुटेशन। वो परवाह नहीं करते कि मुझे लोग क्या कहेंगे। उन्होंने अपने जीवन में जो डिसीजन लेना है, जो काम करना है, वो ये देखेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में ये काम सही है या गलत है। हो सकता है लोगों की दृष्टि में वो काम बुरा हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो काम सही हो। तो प्रभु का एक सच्चा जन उस जगह खड़ा होगा और वही बोलेगा और वही राइट डिसीजन लेगा। वो ये परवाह नहीं करेगा कि लोगों के अंदर मेरा रेपुटेशन क्या होगा। शाऊल एक वीक व्यक्ति है जो लोगों के अंदर पॉपुलर बन के रहना चाहता है, लोगों की अप्रूवल ढूंढता है, यहोवा की अप्रूवल नहीं चाहता। तो
उसको परमेश्वर के संग अपने रिलेशनशिप की कोई परवाह नहीं है। पढ़ लीजिए आप पूरा किस्सा सैमुअल में, और सैमुअल की पूरी पुस्तकों के अंदर शाऊल के विषय में। शाऊल ने कभी भी परमेश्वर के संग अपने पर्सनल रिश्ते को कोई अहमियत नहीं दी। जो शाऊल था वो एक बड़ा कुशल राजा था, बहुत ज़बरदस्त वो एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया थी। वो बहुत ज़बरदस्त इकॉनमी चला रहा था अपने कंट्री की। वो बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन था, उसको पॉलिटिक्स आती थी। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी और उसने इज़राइल की हदों का विस्तार भी किया। उसने इज़रायली फ़ौज को भी बड़ा मजबूत किया। लेकिन परमेश्वर को इन बातों की कोई फिक्र नहीं है। वचन पढ़िए ध्यान से, राजाओं की किताबें और क्रॉनिकल्स पढ़िए। वहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, जब कोई राजा जिसने इज़राइल पे राज्य किया 40 साल, 50 साल, 10 साल, 20 साल, जब वो मरा तो एंड में क्या लिखा इन सारी किताबों में? ये सिर्फ एक बात लिखी है कि फ़लाना राजा मर गया, जोशाया, जोहाकीम, ज़दकाया या यहोशाफाट, कोई भी राजा वो मर गया। और सिर्फ ये लिखा, एपिटैफ जैसे कब्र पे लिखा जाता है, सिर्फ बाइबल में ये लिखा है कि वो अपने पिता दाऊद की तरह यहोवा के संग खराई से चलता था और उसने वही काम किए जो यहोवा की दृष्टि में अच्छे थे, और वो मर गया और उसे फलानी जगह मिट्टी दे दी गई। और दूसरों के विषय में लिखा है वो दुष्टता में चला और उसने यहोवा को बहुत क्रोध दिलाया और वो मर गया और उसे फलानी जगह मिट्टी दे दी गई। ये नहीं लिखा कि वो कितना उसने राज्य का विस्तार किया, कितनी ज़बरदस्त इकॉनमी चलाई, कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कितने सामाजिक कल्याण के काम किए, कितने विकास के काम किए। ये तो कहीं भी नहीं लिखा कलाम में। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ यू रिलेट विद गॉड, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद गॉड, वेदर यू गिव utmost importance to your relationship with God or not। परमेश्वर के संग आपका रिश्ता कैसा है, परमेश्वर के संग अपने रिश्ते को आप क्या अहमियत देते हो। शाऊल एक हिपोक्रेट व्यक्ति है, दुनिया के सामने दिखावा करता है। दाऊद एक खुली किताब है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के सन्मुख खुली किताब बने। लोगों को क्यों इम्प्रेस करना है, लोगों के सामने क्यों पॉइंट स्कोर करने हैं हमने, किसको इम्प्रेस करने की मुझे ज़रूरत है? ये दिखा के मैं बहुत ज़बरदस्त प्रचारक हूँ, बहुत महान पास्टर हूँ, बड़ा अभिषिक्त हूँ, बहुत दुष्टात्माएं निकलती हैं प्रार्थना से, बहुत रोगी चंगे होते हैं, बहुत उपलब्धियों का, अपनियों का जिक्र करूँ। क्यों भाई, क्यों? आई डोंट हैव टू इम्प्रेस यू। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे स्वामी को प्रसन्न करना है। हालेलुया। डेविड के विषय में पहला सैमुअल 13:14 पढ़िएगा। एक ही ऐसा बंदा है जिसके विषय में यहोवा ने ये गवाही दी। यहोवा ने कहा, दाऊद जो है वो मेरे दिल के अनुसार व्यक्ति है, वो मेरे दिल की मर्जी पूरी करेगा। तो भाइयों और बहनों, लोगों को प्रसन्न करने वाली मिनिस्ट्री बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बरकतें बांटने का पिटारा खोल के मत बैठ जाया करें फेसबुक पे लोगों को प्रसन्न करने के लिए। सच्चा कलाम बोलिए, कड़वा है तो कड़वा बोलिए, डांट रहा है यहोवा तो डांटिए, दुत्कार रहा है तो दुत्कारिए, डिसिप्लिन कर रहा है तो डिसिप्लिन कीजिए, जो यहोवा कहता है वो कहिए। शाऊल हिपोक्रेट है, दाऊद एक वास्तविक व्यक्ति है जिसके जीवन में कमियां कमजोरियां बहुत हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दिल के मुआफिक है। हालेलुया। अपनी बदकारी को छिपाता नहीं है। शाऊल तो छिपाना चाह रहा है कि मुझे छोड़ के ना जा, कहीं लोगों को ना पता लग जाए कि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। दाऊद तो कहता है, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुरियाई, मैनू विच गुनाह दे
जम्मिया मेरी माई, मेरी माँ ने बदी में मुझे जन्म दिया। हालेलुया। तो मैंने आपको कल बताया कि यहोवा ने दाऊद के संग एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो यहोवा ने किसी के संग नहीं किया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तेरे सिंहासन पे कभी ऐसा नहीं होगा कि तेरे सिंहासन पे कोई बैठने वाला तेरा वारिस ना हो। मैं तेरे सिंहासन को इटर्नल करूंगा। इटर्नल, ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरे सिंहासन पे कोई बैठने वाला ना हो। ये प्रतिज्ञा की। और मैंने कल आपको बताया यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तेरी औलाद को मैं, अगर वो मेरे मार्गों पे नहीं चलेगा तो मैं उसे चेस्टाइज करूंगा। और कैसे उसकी ताड़ना करूंगा? थ्रू मैन, लोगों के द्वारा, लोगों को इस्तेमाल करूंगा उसे सजा देने के लिए। और अन्य जातियों की छिटी से क्या कहा था? पर मैंने आपको कल वचन दिया कि अन्य जाति के कोड़े, अन्य जातियों से कोड़े लगवाऊंगा। अगर तेरी औलाद मेरी विधियों को नहीं मानेगी, अगर तेरी औलाद मेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगी, अगर तेरी संतान मेरे मार्गों पे नहीं चलेगी और मेरे नाम को सम्मान नहीं देगी, तो प्रभु ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि अन्य जातियों को उभार के लाऊंगा और तेरी संतान को सजा दिलवाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? दूसरा सैमुएल उसके 7 अध्याय में से मैंने आपके लिए पढ़ा था कल, मैं फिर पढ़ देता हूं। प्रभु कहता है आई विल बी, 14 वचन पढ़िए, 7 का 14। आई विल बी हिज फादर एंड ही विल बी माई सन, इफ ही कमिट इनिक्विटी आई विल चैस्टन हिम विद द रॉड ऑफ मैन। मनुष्यों की रॉड इस्तेमाल करूंगा, एंड विद स्ट्राइप्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ मैन, बट माई मर्सी शैल नॉट डिपार्ट अवे फ्रॉम हिम एज आई टुक इट फ्रॉम सॉल। जैसे मैंने शाऊल से अपनी करुणा को हटा लिया, वैसे मैं तेरी औलाद से अपनी करुणा कभी नहीं हटाऊंगा। और क्या कहता है प्रभु? एंड दाइन हाउस एंड दाइन किंगडम शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवर बिफोर दी। तेरा घर आना और तेरी बादशाही सदा के लिए कायम रहेंगी। दाई थ्रोन शैल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एवर। तेरा सिंहासन हमेशा के लिए कायम रहेगा। ऐसी प्रतिज्ञा यहोवा ने किसी के संग नहीं की। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में मेरे संग चलिएगा। हालेलुया। मैं इज़राइल की हिस्ट्री में आपको लेके जाना चाहता हूँ, दाऊद के घराने के अंदर आपको लेकर जाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे अपराध, कैसा कैसा अधर्म, कैसी कैसी बदकारियाँ और कैसे कैसे छिनाले के घिनौने काम यहूदा ने किए। और इस्राएल ने तो बहुत किए। इस्राएल पहले ही असीरी में चला गया। 722 BC में वो असीरिया की, अशूर की गुलामी में चला गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यहोशाफाट एक अच्छा राजा था, लेकिन अहाब के साथ उसने दोस्ती कर ली, एक बुरे राजा के साथ। और अहाब की जो पत्नी थी सायरोफिनिशियन थी, फनीशियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करने वाली। फनीशिया में क्या होता था? बालीमों की, बेल की और अश्तरोथ की पूजा होती थी, जिसे हम निम्रोद और सेमेरामिस कहते हैं, और उनके बेटे को तम्मूज। ये एक धर्म का सिस्टम था। निम्रोद, सेमेरामिस और तम्मूज, यही है जो रोमन कैथोलिसिज्म में चला गया। 325 AD में जो निसियन क्रीड बनाई गई, उसके अंदर ये सब चीज़ें मिला दी गई। और प्रभु इन्हें क्या कहता है? प्रभु इन्हें कहता है बाल, बेल, बालीम, गॉड बेल, और प्रभु कहता है ग्रोव्स, पेड़ों के नीचे उपासना। ग्रोव्स का मतलब है अश्तरोथ, सेमेरामिस, देवियों की उपासना। ये फर्टिलिटी कल्ट है, एक पुरुष की उपासना और स्त्री की उपासना, पुरुष के प्रजनन अंग की पूजा और स्त्री के प्रजनन अंग की पूजा। ये फर्टिलिटी कल्ट हैं, बाबिलोन से निकले हैं, पूरे विश्व में यही समाये हुए हैं। और तीसरी चीज प्रभु यहोवा ने कहा कि तुम आकाश के गणों की पूजा करें, जो कॉन्स्टेलेशन है, तारों की जो यहोवा ने बनाई हैं, उनकी पूजा। ये 3 बातें हैं मूर्ति पूजा की, करप्शन की, बाइबल में। पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इज़राइल ने
जो इज़राइल गुलामी में चला गया 722 में, उसके बाद यहूदा का भी पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि यहोशाफात के बेटे ने, जेहोराम ने, अहाब और इज़ाबेल बालीमों की पूजा करने वाली है, शैतानी औरत है, जिसने पूरे इज़राइल को यहोवा की उपासना करने से हटा दिया है। और इज़राइल के अंदर नॉर्दर्न किंगडम में एक बाल की पूजा का सिस्टम क्रिएट कर दिया है। पूरे इज़राइल के 10 गोत्रों को यहोवा से तोड़ दिया उसने, बालों की पूजा करते हैं। और बाल के 850 नबी हैं। बाल के नबी क्या करते थे, वो दूसरे स्वर्ग से, जहाँ पे शैतानी आत्माओं का डेरा है, वहाँ से आग नीचे बुलाया करते थे। जब आग आती देखी तभी इज़राइल ने यहोवा को छोड़ा है। तो हम देखते हैं खुदा का एक खादिम है जिसका नाम है एलियाहू। हालेलुया, मेरा यहोवा इलोहीम है। हालेलुया, एक ऐसा अद्भुत खुदावंद का खादिम खड़ा होता है, एलिया नबी, और वो बाल के नबियों को ललकारता है। जब ललकारता है तो बाल की आग तो बंद हो जाती है सेकंड हेवन से आनी, लेकिन तीसरे स्वर्ग से यहोवा के हजूर से आग आती है और सारा इज़राइल यहोवा की ओर मुड़ता है। और इज़ाबेल को क्रोध आता है क्योंकि 850 नबियों को एलिया मरवा देता है। और इज़ाबेल ने इज़राइल को, नॉर्दर्न किंगडम को ऐसा भ्रष्ट किया। फिर यहोशाफाट शैतान के ट्रैप में फंसा, अहाब से दोस्ती की। यहोशाफाट के बेटे जोराम ने इज़ाबेल और अहाब की बेटी अथलिया से शादी की। अथलाया एक ऐसी औरत है जिससे ज़्यादा विकेड औरत पूरे यहूदियों के इतिहास में नहीं थी। अथलाया एक औरत है जिसके अंदर बीज तो अहाब का है, लेकिन वो सेरोफिनेशियन गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करने वाली ईवल औरत है, और वो सिंहासन पे बैठती है, अपनी ही औलाद को मरवा देती है। और दाऊद के ख़ानदान में से जितना बीज बाकी था, जितने मेल बच्चे थे दाऊद के ख़ानदान के, सबको मरवाती है। लेकिन फिर भी यहोवा 1 महीने के बच्चे जोसाया को बचा लेता है। क्यों बचाता है? क्योंकि यहोवा की प्रतिज्ञा भाई, यहाँ पे मैंने आपको वचन पढ़ के बताया, यहोवा ने कहा कि दाऊद तेरे सिंहासन पे ऐसा कभी नहीं होगा कि तेरे सिंहासन को वारिस ना मिले। यहोवा ने प्रतिज्ञा, अब विडंबना देखिए, यहोवा ने एक प्रतिज्ञा कर दी दाऊद के साथ, लेकिन बनी इस्राएल ने दबा के पाप किया है। उन्होंने वो काम किए जो अन्य जातियां भी नहीं करती थी। उन्होंने बार बार यहोवा की प्रतिज्ञाओं को तोड़ा, यहोवा की वाचा को रद्द किया। वो रोलर कोस्टर उनका जीवन है, कभी ऊपर जाते हैं फट सारे नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। जब कोई उनको राइचस अगुआ, गॉडली खुदा का अगुआ मिलता है, राजा मिलता है, फिर उनके अंदर बेदारी आती है, फिर वो अपने पापों को अंगीकार करते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते हैं। फिर कोई दुष्ट राजा आ जाता है, वो फिर दोबारा जाके छिनाले के काम करने लग पड़ते हैं। बार बार यहोवा के हृदय को दुखी करते हैं, बार बार बालीमों की पूजा करते हैं, बार बार ग्रोव्स की पूजा करते हैं, बार बार वो प्लैनेट्स को पूजते हैं। यहोवा का कोप उनके ऊपर बार बार भड़कता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर इन सब के बावजूद अपने मुंह की प्रतिज्ञा को स्मरण रखता है जो उसने दाऊद के साथ की है। तेरे सिंहासन पे बैठने के लिए हमेशा वारिस होगा, मैं तेरी गद्दी को इटर्नल करता हूँ, स्थिर करता हूँ। हालेलुया। तो पूरा इस हिस्ट्री पढ़िएगा आप, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मैं बहुत सारे रेफरेंसेस अलग अलग आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूँ। मेरे संग जल्दी से पढ़ें यिर्मयाह नबी की पुस्तक में। चलिए, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 22, यिर्मयाह चैप्टर नंबर 22। जो यीशु मसीह की जीनियोलॉजी की बात करनी है, वो अभी तक वहाँ पे हम पहुँचे नहीं हैं। पढ़िए यिर्मयाह चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 28। यिर्मयाह 22 के 28 से पढ़ते हैं हम, सुनिए ध्यान से। इज दिस मैन कोनाया या कोनिया, a despised broken idol? Is he a vessel wherein is no pleasure? Wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into a land which they know not? ये जो कोनिया की बात हो रही है 28 वचन में, जो यिर्मयाह खुदा का खादिम कर रहा है, ये यहूदा के आखिरी राजाओं में से एक है। इनफैक्ट आखिरी राजा है ये। इसके बाद ज़िदकिय्याह राजा बनता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो राजा नहीं है बट वासल किंग है। वो
वासल किंग वो होते थे जब कोई देश इज़राइल को गुलाम बना के ले जाता था, वो अपना एक एजेंट यहूदियों में से ही इज़राइल के ऊपर पीछे केयर टेकर नियुक्त कर जाते थे ताकि वो उनको लोगों के टैक्स इकट्ठा करके दे। उसे वासल किंग बोला जाता था। कोनिया आखिरी राजा है, लेकिन इसका नाम है जकोनिया। पूरा इसका नाम है जकोनिया। जकोनिया का मतलब होता है क्राउन, ताज, मुकुट। अब यहोवा इससे मुकुट छीन रहा है। जो सिंहासन का मुकुट है, दाऊद के सिंहासन पे बैठने वाला रॉयल डायाडेम, शाही मुकुट, वो इससे हटा लिया यहोवा ने। जकोनिया मुकुट होता है, लेकिन अब मुकुट चला गया इसका। अब यहोवा इसे सिर्फ कोनिया कह रहा है। कोनाया, इज दिस मैन कोनाया अ डिस्पाइज्ड ब्रोकन आइडल? क्या ये व्यक्ति कोनाया एक टूटी हुई मूर्ति नहीं है? इज ही अ वेसल वेयर इज नो प्लेजर? क्या ये वो बर्तन नहीं है जिसमें यहोवा को कोई खुशी नहीं मिलती? वेयरफॉर आर दे कास्ट आउट? क्यों इनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया? ही एंड हिज सीड, ये इंसान, ये राजा जकोनिया जो कोनिया बन गया है, जिसके सर से मुकुट छीन लिया गया है, यहोवा ने छीन लिया मुकुट। तो क्या कहता है? इनको बाहर निकाल दिया गया, इसे और इसके बीज अर्थात इसकी औलाद को। एंड आर कास्ट इन टू अ लैंड विच दे नो नॉट, ये उस देश में यहोवा इनको डंप करने जा रहा है। यहां से इज़राइल से निकाल के उस देश में, असीरी के देश, गुलामी के देश में फेंकने जा रहा है जिसे ये नहीं जानते। और क्या कहता है 29 वचन पढ़े, ओ अर्थ, ओ अर्थ, ओ अर्थ, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का कलाम सुन। दस सेथ द लॉर्ड, यहोवा यूं कहता है, राइट ई दिस मैन चाइल्डलेस, लिख लो। प्रभु यहोवा कहता है, क्या कहता है? लिख लो तुम कि ये जो बंदा है जिसका नाम था जकोनिया, मैंने इसका मुकुट छीन लिया इस राजा के। ये दुष्ट है, इसने इज़राइल को बाल के मार्ग पे चलाया है, इसने इज़राइल को बदकारी के लिए उकसाया है, इसने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, इसने परमेश्वर की तोरा, परमेश्वर के वचनों का सम्मान अपने जीवन में नहीं किया। इसलिए मैं इसके ऊपर भेज रहा हूँ मनुष्यों की रॉड को, जो मैंने आपको वचन बताया था। प्रभु यहोवा ने क्या कहा था कि मनुष्यों का डंडा इसे लगवाऊंगा मैं। जब वो पहला सैमुएल में, दूसरे सैमुएल में जब मैंने आपको पढ़ के बताया, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय के 13 वचन से, प्रभु ने कहा इसकी मैं थ्रोन को स्थिर करूंगा, लेकिन अगर ये मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो रॉड ऑफ मैन से इसे मैं करेक्ट करूंगा और मनुष्यों के कोड़े से लगवाऊंगा। तो सजा आ रही है इसके ऊपर, आखिरी राजा है। क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है ये बंदा जो है, राइट ई दिस मैन चाइल्डलेस, ये नपुता है बंदा, ये इसके कोई औलाद नहीं है। ए मैन दैट शैल नॉट प्रॉस्पर इन हिज डेज, ये अपने जीवनों में कभी सफल नहीं होगा। फॉर नो मैन ऑफ हिज सीड शैल प्रॉस्पर, इसके बीज में से किसी के ऊपर बरकत नहीं आएगी। सिटिंग अपॉन द थ्रोन ऑफ डेविड एंड रूलिंग एनी मोर इन जूडा, मैं गद्दी छीन रहा हूं इससे, सिंहासन छीन रहा हूं। अब मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ें, पहला इतिहास, पहला इतिहास जल्दी से निकालिए, पहले इतिहास की पुस्तक निकालिए प्लीज़ जल्दी से, हालेलुया। उसका 3 अध्याय निकालिए, पहला इतिहास 3 अध्याय। अब मैं पढ़ता हूँ आपके लिए वहाँ से 17 वचन से। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3 बिगिनिंग फ्रॉम वर्ड्स नंबर 17। सुनिए ध्यान से, पहला इतिहास 3 अध्याय के 17 वचन से। एंड द सन्स ऑफ कोनाया, ये कोनिया का जिक्र आ गया वहाँ। जकोनिया, ये जकोनिया है, सन्स ऑफ जकोनिया, ये जकोनिया था, क्राउन था, मुकुट था, लेकिन ये कोनिया बन गया। जो मैंने आपको वचन पढ़ा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 22 अध्याय के 28 से 30 वचन में, इसको यहोवा कोनिया कहता है, इसका मुकुट छीन लिया। लेकिन इस बंदे को प्रभु कहता है इसके ये नपुता है। लेकिन पढ़ के देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एंड द सन्स ऑफ जकोनिया अस्सिर, शलाथियल, मलकीराम, पेदाया, शेनाजर, जकमाया, होशामा एंड निदबाया, 7 बेटे हैं इसके। दिस मैन हैज 7 sons, but God is saying you are childless before me, none of your children will sit on the throne। तेरे खानदान में से अब मैं किसी को सिंहासन पे बैठने नहीं दूंगा। मुकुट छिन गया, राज्य छिन गया। इसका एक बेटा है पेदाया, 18 वचन में पढ़ेंगे, मलकीराम एंड पेदाया। हम आगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो परमेश्वर ने तो वादा किया था भाई और बहनों कि सिंहासन पे
ऐसा कभी होगा नहीं कि कोई वारिस ना हो जो ना बैठे। तो क्या परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने अपना वादा तोड़ दिया? प्रभु ने कहा जकोनिया के राज्य में से कोई भी थ्रोन पे नहीं बैठेगा। मैंने आपको जीनियोलॉजी की बात कर रहा था ना, यीशु मसीह की वंशावलियाँ जो मत्ती में लिखी है और लूका में लिखी है। क्यों दोनों वंशावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें समझना। ये सारी इज़राइल की हिस्ट्री को समझना ज़रूरी है, परमेश्वर की वाचा को समझना ज़रूरी है, परमेश्वर के करारों को समझना ज़रूरी है, जो परमेश्वर ने अपने लाडले बेटे, वो लाडला बेटा है दाऊद का मतलब होता है दोदावाहू हिब्रू में, जिसका मतलब होता है दी वन हुम गॉड लव्स, वो जिसे यहोवा प्यार करता है। अद्भुत पैट्रियार्क है राजा दाऊद, अद्भुत, हालेलुया, अद्भुत। भाइयों और बहनों, कई बार लोग इन अद्भुत खुदा के पैट्रियार्क को समझते नहीं हैं। इनके संग आपका एक रिलेशनशिप है, इन सब के संग एलिया, मूसा, यशाया, यिर्मयाह, नूह, हनूक, ओबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलाकी, जकराया, जपनाया, हग्गाय, मलाकी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया, अलीशा, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, शद्रक, मेशक, ओबेद, ये सब खुदा के जो अजीम बंदे हैं, इनका आपके संग संबंध है। बाइल जब आप पृथ्वी पे, मैं एक वचन देना चाहता हूँ, लेकिन वचन देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले, शायद 10 साल हो गए या 9 साल हो गए, मैंने एक मीटिंग की पास्टर्स की। उसमें बहुत से पास्टर इकट्ठे हुए, असेंबलीज ऑफ गॉड के संगति इकट्ठी हुई, पास्टर इकट्ठे हुए, और मैं अध्ययन कर रहा था दाऊद के ऊपर, और मैंने वहाँ पे प्रचार किया राजा दाऊद के जीवन के ऊपर। 2 सेशन लिए, बहुत अद्भुत प्रचार था। कैसे राजा दाऊद के पाप थे, उन पापों के कारण क्या क्या हुआ, क्या क्या इज़राइल के ऊपर असर पड़ा राजा दाऊद के पापों के विषय में, राजा दाऊद की कौन सी बदकारी ने कौन सी आज्ञा तोड़ी, कौन से पाप ने कौन सी आज्ञा तोड़ी। बाइबल में एक बास्टर्ड का कर्स है, जिसे पंजाबी में हम कहेंगे हराम जादे दा कर्स। जो बास्टर्ड का कर्स है 10 जनरेशन्स तक चलता है। यहोवा ने कहा बास्टर्ड कर्स के जो नीचे हैं वो 10 जनरेशन्स तक मेरी हैकल में नहीं आ सकता। तो राजा दाऊद के ख़ानदान पे भी बास्टर्ड का कर्स था। तो मैंने पूरा डिटेल में स्टडी दिया कि राजा दाऊद 10th जनरेशन था, 10th जनरेशन था, और इसको ये कर्स ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन राजा दाऊद ने भी वही काम किया। कर्स ऑफ द बास्टर्ड आता है सेक्सुअल इमोरालिटी से, फॉर्निकेशन से या अडल्ट्री से। तो मैंने राजा दाऊद के विषय में प्रचार किया, लेकिन राजा दाऊद को विलन बना के पेश किया। कई प्रचारक ऐसे करते हैं, उनके पाप के ऊपर बहुत नेगेटिवली बोलते हैं, नकारात्मक ढंग से बोलते हैं और बुरी बुरी बातें कह जाते हैं। और मैंने ऐसा प्रचार किया जिसमें मैंने अपने बाप, अपने पिता राजा दाऊद को बहुत गलत शेड में प्रीच किया। बहुत ज़बरदस्त मैसेज हुआ, प्रेज द लॉर्ड, बड़ा ज़बरदस्त कलाम, ये वो बड़ी बातों बोली लोगों ने। मैंने अपनी वहाँ से प्रीच किया, खाना खाया, गाड़ी निकाली, मैं चला गया और मैं अपने ससुराल गया। मैं पहुँचा वहाँ पे जाके शाम को, मैं जाते बिस्तर पे लेट गया। उसके बाद भाइयों और बहनों 3 दिन तक मैं बिस्तर से उठ नहीं सका। आई वॉज सो सिक फॉर नो राइम और रीज़न। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बीमार क्यों। फिर मेरी आत्मा में प्रभु ने डाला, जब मैं प्रभु के आगे रोया, कि तूने अपने बाप, अपने पिता, अपने पैट्रियार्क, जो मेरा इतना प्यारा व्यक्ति है, उसके विषय में वो बातें बोली जो तुझे बोलनी नहीं चाहिए थी। कई बार हम उनको ऐसे पोर्ट्रे करते हैं नेगेटिव शेड में, परमेश्वर के उन अजीम बंदों की कमियों को ऐसे पेश करके प्रचार करते हैं, जो हमारे लिए करना बहुत ही गलत है। मैंने परमेश्वर के आगे घुटने टेक के रो रो के माफ़ी मांगी, पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, और मैंने अपने बाप राजा दाऊद से भी माफ़ी मांगी। बहुत समय मैंने माफ़ी मांग के प्रार्थना की। फिर मैंने स्पिरिट में राजा दाऊद को मेरे ऊपर स्माइल करते देखा। मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताने जा रहा हूँ। अभी जो जीनियोलॉजी का मैसेज है, जो शूकी गिल जी बात कर रहे थे, अभी तो वो उस तरफ मैं अभी गया भी नहीं,
लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, ज़रूर आप उसे ध्यान से सुने। मेरे साथ निकालिए आप हीब्रूज़, इब्रानियों की पत्री निकालें। बाइबल के कुछ ऐसे गहरे भेद हैं भाई और बहनों, जो ऐसे रेवलेशन हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है, एकदम जीवन में मतलब ऐसी रोशनी जग जाती है। हालेलुया। तो आप निकालें 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री, और 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री, और मैंने इस पे आपको एक बार मैसेज दिया है। 12 अध्याय इब्रानियों की पत्री अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे 12 के 15 में बात की जा रही है ईसाऊ की, और 16 में लिखा है लेस्ट देयर बी नो फॉर्निकेटर और प्रोफेन पर्सन एज ईसाऊ। ईसाऊ के विषय में ये बातें लिखी हैं, खैर मैं वहाँ अभी नहीं जाना चाह रहा। मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ 18 वचन में। यहाँ पे 2 पहाड़ों की बात करता है प्रभु का भक्त। मैं समझता हूँ संत पौलुस ने ये पत्री लिखी है, हिब्रूज, ये मेरा फर्म बिलीफ है। तो यहाँ पे खुदा का बंदा ये बात कर रहा है 2 पहाड़ों की। एक सिनई पहाड़ की कर रहा है, जहाँ पे इजरायली लोग जिस पहाड़ के नीचे जाके खड़े हो गए थे, और यहोवा ने उनके संग वाचा बांधी, और लिखा है कि वहाँ पे गहरा अंधेरा छा गया, उस पहाड़ को कोई छू नहीं सकता था, उसमें आग लग गई उसको, और बहुत अंधेरा आया और बिजली कड़कने लगी, टेम्पेस्ट आया, भूमि कांपने लगी, और बहुत ऊंची आवाज़ में तुरही की आवाज़ आने लगी, ऐसी आवाज़ जिसे कोई सुन भी नहीं पा सकता था, कोई वहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। और 21 वचन में लिखा सो टेरिबल वॉज द साइट, बहुत भयानक नज़ारा था कि मूसा ने भी कहा परमेश्वर मैं कांप रहा हूँ, डर रहा हूँ। ये वो पहाड़ ऐसे नहीं। और अब 22 वचन में इस पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कंपेयर कर रहा है इब्रानी लिखने वाला। क्या कहता है कि उस पहाड़ के पास पहुंचे थे इजराइली, उस पहाड़ के नीचे आगे थे। बट ये आर कम अन टू माउंट सायोन, पर तुम सहून के पहाड़ के पास आए हो। वो सिनई पहाड़ के पास पहुंचे थे, हम कौन से पहाड़ के पास पहुंचे हैं? सियोन पहाड़ के पास। वी आर ऑलरेडी कम, हम नया जन्म पाए, यीशु मसीह के लहू से धुले, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जीवन पाए हुए लोग, हम ऑलरेडी सियोन पर्वत के पास पहुंचे हैं। आप और मैं जब आत्मा में आके प्रार्थना करते हैं, हम सियोन पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। स्पिरिट रेल्म में हम आत्मा में मूव करते हैं, उसी समय सियोन पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। हालेलुया। हम कहीं भी हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जापान में, इंडोनेशिया में, और रशिया में, या ब्रिटेन में, कनाडा में, यूएस में, आप कहीं भी हैं, जब आप आत्मा में, अगर आपने नया जन्म पाया, यीशु मसीह के लहू के नीचे जीवन जी रहे हैं, जब आप आत्मा में आते हैं, आप सियोन पर्वत के पास पहुंच जाते हो। कहाँ पहुंचते हो? अनटू माउंट जायन, सियोन के पहाड़ पे। और आप कहाँ पहुंचते हो? दूसरी बात क्या लिखी है? अनटू द सिटी ऑफ द लिविंग गॉड, जीवते परमेश्वर के शहर में पहुंचते हैं हम। और क्या लिखा है? द हेवनली जेरूशलम, स्वर्गीय जेरूशलम के पास पहुंचते हैं। और क्या लिखा है? टू द इनन्यूमरेबल कंपनी ऑफ द एंजल, खरबों गुना खरबों दूतों के बीच में खड़े होते हैं जब हम आत्मा में दुआ करते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हम पहुंचेंगे जब स्वर्ग जाएंगे, यहाँ पे लिखा बट यू आर कम, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये प्रेजेंट रियलिटी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे हम हर समय जब प्रभु की हुजूरी में रहते हैं, हम सियोन पर्वत के पास हैं, जीवते परमेश्वर के शहर के अंदर घुसे हुए हैं, नए यरूशलेम में हैं हम, और फरिश्तों की मंडलियों के बीच में हैं। और लिखा टू द जनरल असेंबली एंड द चर्च ऑफ द फर्स्टबॉर्न, जो पहलोठों की कलीसिया है। पहलोठों की कलीसिया है, पतरस, यकूब, यूहन्ना की कलीसिया, उस कलीसिया में हम पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जो संत है ना, पहलोठों की कलीसिया, उनके संग हमारी सहभागिता होती है आत्मा में। यू आर स्टैंडिंग देयर वेयर पीटर इज, वेयर जेम्स इज, जॉन इज, वेयर ऑल द सेंट्स आर, यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर इन द स्पिरिट। आप आत्मा में वहाँ पहुँच चुके हैं। विच आर रिटन इन हेवन, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, एंड टू गॉड द जज ऑफ ऑल। और हम किसके पास पहुँचते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट है स्वर्ग का, यहाँ पे जज बैठा हुआ है यहोवा, उसके पास पहुँचते हैं। एंड टू द स्पिरिट ऑफ जस्ट मैन मेड परफेक्ट। अब देखें ध्यान से, आप किन के पास पहुँच जाते हो? स्पिरिट्स ऑफ द जस्ट मैन मेड परफेक्ट। आप उन आत्माओं के पास पहुँचते हो, धर्मियों की आत्माएं जो कामिल हैं अब परमेश्वर के हुजूर में।
किसकी आत्मा के पास पहुंचे हो आप दाऊद की आत्मा के पास पहुंचे हो, आप जिर्मिया की, आप एलिया की, मूसा की, आप जशाया की, उबदाया की, जोना की, मीका की, नहूम की, हबक्कुक की, मलाकी की, आप नूह की, आप हनूक की आत्मा के पास पहुंचे हो। ये कलाम कह रहा है, उनके संग हमारी सांझ है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वी हैव कम, ये जो पहली की फ्रेज है, बट यू हैव कम अनटू, उसके संग आप जोड़ते जाएं, वी हैव कम अनटू द स्पिरिट्स ऑफ जस्ट मैन मेड परफेक्ट। ये सब भाई और बहनों गवाहों का बादल बन के हमें देख रहे हैं ऊपर से। ये सब कामिल संत, पुराने ऐहदनामे के, नए ऐहदनामे के, आपको और मुझे देख रहे हैं। एंड टू जीसस, हम किसके पास पहुंचे हुए हैं? यीशु मसीह के, मीडिएटर ऑफ द न्यू कवनेंट, जो नई वाचा का विचोला है। एंड टू द ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग, और लहू के पास हैं आप, यीशु मसीह के जिंदा लहू के। और ये लहू बोल रहा है। पता क्या कर रहा है ये लहू? यहाँ लिखा है ब्लड ऑफ स्प्रिंकलिंग दैट स्पीकेथ बेटर थिंग्स देन दैट ऑफ एबल। हाबिल का लहू पृथ्वी से बोल रहा था और यहोवा के कोर्ट रूम में आवाज़ लगा रहा था। यहोवा की अदालत में हाबिल का खून पुकार के कह रहा था मेरा बदला लो। लेकिन यीशु मसीह का खून आपके डिफेंस में बोल रहा है। यीशु मसीह का खून आपका गवाह है। यीशु मसीह का खून आपका लीगल डिफेंस है स्वर्गीय मकामों में। हालेलुया। ये हमें देख रहे हैं ऊपर से। जब हम इनके विषय में गलत बातें बोलते हैं पृथ्वी पे, ये दुखी होते हैं। समझ रहे हो आप? हालेलुया। वचन में लिखा, गवाहों के बादल ने जब हमें घेर रखा है, तो आओ हम उस उलझाने वाले पाप को, ये पाप आपको मालूम कौन सा? बिसेटिंग सिन लिखा है इसे इंग्लिश में। इट इज़ अ सिन दैट रन्स इन योर जीनोम, इट इज़ अ सिन इनसाइड योर डीएनए, इट इज़ योर सेकेंड नेचर, इट इज़ योर नेचर एट डिफॉल्ट। मैंने आपको बताया था, ये अवान है जो खून के अंदर और डीएनए के जीनोम में चलता है। डीएनए और आरएनए के अंदर इम्प्रिंट है ये, इसे निकाल फेंकता है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के शरीर के जो गहरे घाव हैं, यीशु मसीह को इंटरनल ब्लीडिंग हुई जब मार पड़ी उसे, जो इंटरनल ब्लीडिंग हुई जीसस की, वो आपके इंटरनल पाप के लिए है, जो अवान है, जो इनिक्विटी है। राजा दाऊद जिसे कहता, देख बदी में मेरी माँ ने मुझे कोख में लिया, मैं भी पैदा होया ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਦੇ जम्मिया मेरी माही। ये इनिक्विटी जो है, इसे यीशु मसीह खुरच के निकाल देता है, यीशु मसीह का लहू। तो भाई और बहनों, ये जो कामिल संत हैं, ये आपको देखते हैं, आपको निहारते हैं और आपसे प्रीति करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इनके विषय में आप फूहड़ता से भरी, मूर्खता से भरी बातें मत बोलिए। हालेलुया। ये हमारे पुरखे हैं, पैट्रियार्क्स हैं, हम इनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। इनके जीवन की जो भी बातें कलाम में लिखी हैं, वो हमें सिखाने के लिए लिखी गई हैं, ना कि एक भद्दे ढंग से उनका मजाक उड़ाने के लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह की जो जीनियोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें अभी मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हुआ हूँ, उसके अंदर अभी हम नहीं गए। लेकिन मैं आपको बता रहा था कोनिया के विषय में, जो जकोनिया था, लेकिन यहोवा ने उसको कोनिया कर दिया, उसका मुकुट छीन लिया। लेकिन यहोवा का वायदा है कि दाऊद की गद्दी इटर्नल है। आज शाम को हम देखेंगे आगे जीनियोलॉजी के अंदर जाके कि कैसे परमेश्वर ने कौन सा अरेंजमेंट किया है, कि परमेश्वर ने इन्हें सजा भी दी है और दाऊद के साथ किए गए अपने करार को भी नहीं तोड़ा है। हम यीशु मसीह की वंशावली में से शाम को और आगे जाके अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के कलाम की गहराइयों को सीख रहे हैं। प्लीज़ इन गहराइयों को अपना जीवन बदलने दीजिए। बदला जीवन चाहिए। बदला जीवन
यीशु मसीह का चिराग है, यीशु मसीह की मशाल है, यीशु मसीह की रोशनी है, जिसकी लौ में बहुत सारे जो अंधेरे में बैठे हैं वो यीशु मसीह को देखेंगे। यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, जो अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शाम को मैं फिर आपसे मिलता हूँ और इसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। इसके ऊपर भाई और बहनों स्टडी अभी 8 घंटे और चल सकती है, लेकिन मैं ब्रीफ में शाम को उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।